हाँ जी, कल बच्चे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक हो गया। इसमें कोई बेटा साथ साथ बोलते जाना कोई डाउट हुआ तो, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? नो मैम। समझ आ गया बेटा फर्स्ट टॉपिक? ओके। यस मैम। नेक्स्ट है बच्चे, फॉर्म्स ऑफ मनी, ये भी पढ़ लिया था। इसमें भी कोई डाउट तो नहीं आपको? नो मैम। नेक्स्ट, ओके बेटा, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये पढ़ लिया था हमने। चेक पेमेंट पढ़ ली। उसके बाद लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स पढ़ लिया। नेक्स्ट है बेटा, टू सिचुएशंस पढ़ ली थी हमने जिसमें लोन लिया था। एक पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव सिचुएशन थी। यहाँ तक हो गया था बेटा। इस यहाँ तक देखो, कोई डाउट तो नहीं आपको? नो मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हमने आज बच्चे यहाँ से पढ़ना है। ये भी हो गया था अपना, मेगा वाली सिचुएशन पढ़ ली थी ना, उसने हाउस लिया था एक। यस मैम। नेक्स्ट बेटा हमने आज यहाँ से पढ़ना है। पढ़ो, यहाँ से पढ़ोगे? यस मैम। हाँ जी, पढ़ो बेटा यहाँ से। Formal sectors credit in India. We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. The various types of loan can be cultivated groups as formal sector loan and information sector loans. Among the former are loans from banks and comprehends the informal lenders include money lenders, traders, employer, relatives, and friends, etc. In graph first, you can see the various source of credit of rural households in India is the most credit coming from the formal sectors or the informal sector. The Reserve Bank of India surprise the functioning of formal source of loan for instant instant we have seen that the banks maintain a minimum case balance of out of the deposit they receive. The RBI monitor the bank is actually man, bank is actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI seen that can the banks give loan not just to profit making business and traders but also to small cultivator, small small scale industries to small browsers, etc. Period. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to them at what in interest rate, etc. Organization which surprise the informal sector, they lend whatever they
पढ़ दिया मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम अच्छे से। हेलो, कनेक्ट हो गया था। कहाँ तक पढ़ दिया बेटा आपने? मैम सारा पढ़ दिया। ये वाला टॉपिक मैम याद? हाँ यहाँ जी, पढ़ो मुझे। there is no one to stop them from using नेक्स्ट पेज भी पढ़ो बेटा। unfair meaning to them their money bank compared to the formal lenders. Most of the informal lenders charge a much highest interest on loan. These the cost of browsers informal loans in much higher cost of browsing mean a largest part of the earning of the browser is used to repay the loan. Hence browser have less income left of them left for themselves. as we say the Shimala in Sonpur in certain cases the highest शायद interest किसान का नाम है। rate for browsing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of browser. This could lead to increasing debit, as we say for Rama in Sonpur and debit trade. Also, people who might wish to start an enterprise by browsing may not so because of the high cost of browsing. For these reasons, banks and com- cooperative um, societies need to lend more. That this could lead to highest income, and many people could they browse uh, cheaply for a variety of needs. They could grow crops to do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in good, cheap, and aff- affordable अफोर्डेबल। affordable credit sur- is essentially for countries' deployment. यस, इसमें क्या बताया गया बेटा? इस टॉपिक में ये बताया गया कि हमने पहले लोन एक्टिविटीज पढ़ी थी, ठीक है। बट इसमें बेटा दो सिचुएशन बताई है। हमने देखा था कि एक तो बैंक से भी लोन लिया जा सकता है। एक हमने ये भी पढ़ा था कि एक बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, उन लोगों से भी पैसा लिया जा सकता है लोन, ठीक है। तो इसमें टू टाइप के लोन्स आएंगे बेटा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले जो है जो बैंक में से लिए जाते हैं, ठीक है, वो वाले लोन्स कंसिस्ट किए जाते हैं इसमें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी,
एक तो जो मेगा की एग्जांपल पढ़ी थी वो बैंक में से लोन लेती है, ठीक है। एक जो बड़े बड़े लोगों से जो लेती है वो सपना की एग्जांपल हमने कल पढ़ी थी बेटा, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप की सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम लोन ले सकते हैं, जिस टाइप से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बैंक का लोन माना गया बेटा उसको तो हेलो मैम। मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, हाँ जी, अब बोलो बेटा, आवाज आती है? नो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो। एक मिनट बच्चे। हाँ जी, अब बोलो बेटा, अब आवाज आती है? नो मैम। बच्चे आवाज, हाँ जी, अब आवाज आती है बेटा? यस मैम, अभी आने लगी है अभी। हाँ जी, तो इसमें बेटा दो लोन की सिचुएशन है। एक तो हम जब पैसा बैंक में से लेते हैं, बैंक से लेते हैं पैसा। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पैसा कहाँ से लेते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें, उनसे पैसा लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जब इंसान बैंक में से पैसा लेता है तो वो उसे सस्ता पड़ जाता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कुछ वैलिड कंडीशंस उनको पहले ही बता दी जाती हैं कि इतने इतने टाइम पे उन्होंने इतना पैसा देना है, ब्याज फिक्स किया जाता है कि इतने ब्याज उसको इतनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ये पैसा, लोन का पैसा वापस है, ठीक है। तो जब वो इंसान से पैसा लेते हैं, जो धनवान है से पैसा लेता, तो ऐसे लोग होते हैं वो उससे पैसा लोन का भी वापस ले, कंडीशंस कुछ भी नहीं बताते, कोई भी लिखा पढ़त वहां पे नहीं होती, तो वो ऐसे ही पैसा उनमें से उनसे क्या ले लेते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं बेटा बदले में, ओके। तो कौन सा लोन लेना ज्यादा इजी है? ज्यादा इजी तो हम बोल सकते हैं कि किसी से लोन लेना इजी तो है, बट वहां क्या होता है कि वहां ज्यादा देना पड़ जाता है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को ही बदले में उठाना पड़ता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसमें। पहले तो जो छोटे छोटे जगह के लोग होते हैं उनके लिए बताया गया है कि जैसे कोई भी, जैसे गांव के लोग हो गए कोई, तो उनमें उनमें क्या होता है कि कैसे वो बैंक से पैसा लेते हैं, ठीक है। सबसे बैंक की जो दो टाइप से जो पे देखा जाता है कि बैंक का काम सही है कि नहीं, ठीक है। टू वेज होते हैं। एक तो ये चीज देखी जाती है उसमें कि बैंक ने जो पैसा दिया है उसके बदले में जो थोड़ी सी कैश है, नकदी है, वो बैंक बचाता है या नहीं। एक तो इस चीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, बैंक की फंक्शनिंग में। एक इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि जो पैसा लोन के लिए बैंक देता है वो ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को ही पैसा दिया जाता है, जहाँ ये सुविधा जो लोन एक्टिविटीज हैं वो उन्हीं को उपलब्ध की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब कुछ देखा जाता है कि जो छोटे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, क्या वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसका काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि बैंक का काम जो सिस्टम है वो सही चलता है या नहीं, ठीक है, सही काम किया या नहीं बैंक, बाकी की जो बैंक हैं उन्होंने सही काम किया है या नहीं, जितनी भी नकदी है वो यही देखता है, ओके। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं बेटा वो तो बैंक में से पैसा इजीली ले लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं। इसके अलावा उनको पता होता है कि बैंक से पैसा लेना उनके लिए ज्यादा सही है। बट जो छोटे लोग होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है, तो वो क्या है कि ऐसे भी किसी से भी जिसके पास ज्यादा पैसे हो उनमें से पैसा ले लेते हैं। उनसे पैसा जब नहीं चुका पाते तो वो उन्हें पैसा देने के लिए जब बोलते हैं तो उनसे ज्यादा पैसा निकलवा लेते हैं।
लोन का भी पैसा ले लेते हैं, जितना ब्याज बनता है वो भी ले लेते हैं, इसके अलावा भी ज्यादा पैसा निकलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पैसा लिया होता है उस टाइम पे कोई भी कंडीशंस उनको नहीं बताई जाती। हाँ जी बेटा बोलो। नवजोत समझ बेटा। हेलो मैम, थोड़ी आवाज नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही, समझ बिल्कुल नहीं लग रही। फॉर्मल की इंटरनेट मैम, इनफॉर्मल की इंटरनेट प्लीज समझाए भाई। बेटा 2 टाइप से हम लोन ले सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज। ठीक है, फर्स्ट वाले जो होते हैं फॉर्मल वेज होते हैं, इनमें होता है बेटा कि हम बैंक में से ही लोन लेते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हम किसी भी इंसान से भी पैसा ले सकते हैं, जिसके पास जो बहुत ही धनवान धनी व्यक्ति होता है उससे भी पैसा ले सकते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा मनी है। ठीक है, उससे पैसा लेते हैं। समझ आ गया बेटा? पहले तो ये मीनिंग पता चल गई दोनों। समझ आया बच्चे? हाँ जी मैम, लग गई समझ, लग गया मैम। जो ज्यादा समझ होती है, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हेलो हैं, तो मैम। वो एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो कहाँ से। हाँ जी बेटा। हाँ हेलो जी मैम। बोलो बच्चे। हाँ जी बोलो बेटा। चलो मैम आगे चलो। हाँ जी बच्चे, हमने इसमें पढ़ा था बेटा कि अब देखो इसमें क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं उसमें 2 टाइप्स के लोग आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, कुछ जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन लोग होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी वीक होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास वाले जो उन्हें दिखते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, सेठ होते हैं जो बड़े बड़े, उनसे पैसा ले लेते हैं, जिसके बदले में जब वो लोन चुकाते हैं तो उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ जाता है। जितना ब्याज होता है उससे भी, जितना ब्याज निश्चित तो होता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो पैसा देते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको पैसा देते हैं ना लोन वाले व्यक्तियों को, तो कि वो कोई भी कंडीशंस नहीं बताते कि आपने इतने टाइम पे ये पैसा देना है, या उन्हें बताते हैं कि इसके इतना पैसा चुकाने क्या आपने देना है। तो कोई भी पैसे के लिए कुछ नहीं बताते, तो उनसे ज्यादा पैसा निकलवा लेते हैं जब वो वापस लेते हैं। तो इसके बदले में लोन क्यों। मैम थोड़ी बात फिर आनो हट गई। लोन भी चुका देगा, अपने पास भी कुछ पैसे बचा लेगा। ठीक है, बट होता उल्टा है कि उसको उससे भी ज्यादा पैसा उसे देना पड़ जाता है बेटा। ओके, समझ आ गया बेटा यहाँ तक? हाँ जी मैम। तो बैंक वाले लोन को बेटा चीप लोन माना गया, दैट मीन्स एक सस्ता लोन माना गया है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, जिससे इजी वे से कोई भी इंसान बैंक में से लोन लेके अपना काम को चला सकता है बेटा। ओके, तो बैंक का लोन है जो वो सस्ता लोन है, ठीक है, जो इजी पड़ जाता है बेटा उसको। ठीक है, अच्छा लोन माना गया है। जो किसी इंसान से लिया जाता है पैसा, उसको क्या माना गया है? महंगा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि बदले में उनको ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। इसके अलावा जो लोन लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको तंग भी बहुत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। इसके अलावा बैंक की सुविधा
हेलो मैम। आने पड़ते हैं लोन से, ऐसे व्यक्ति से लोन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको ही वो उल्टा महंगा पड़ जाता है बेटा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट में है बेटा, इसमें क्या है कि जो सिटी के पीपल्स होते हैं, ठीक है, पहले हमने विलेज के पीपल्स के लिए लोन पढ़ा था, अब सिटीज के जो पीपल्स होते हैं उनमें भी कुछ बेटा अलग अलग डिविजन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे शो भी किया गया बेटा, ये आपको एक यहाँ पे शो की गई है। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया कि सबसे पहले क्या होता है कि जो बिल्कुल ही वीक सेक्शन लोग होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इससे इसमें क्या मैम आप पर्पल वाली केड़े हुंदे ने ते मैम अपने पिंक वाली केड़े ब्लू ते मैम पर्पल बारे की किवें मैम? खा सकते हैं, ठीक है। तो हेलो इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो तो इजिली बैंक का फायदा उठा लेते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, वो फायदा नहीं उठा पाते, लोन में फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसे किसी से लोन लेके वो उसमें लोन में डूबते ही जाते हैं बेटा, ठीक है, निकल नहीं पाते उस लोन से। जैसे हमने सब सपना की सिचुएशन पड़ी थी बेटा कल, ठीक है, पहले फसल उगाने के लिए लोन लेती है, फसल उगाने के लिए लोन लेती है, उसकी नष्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि अगेन लोन लेती है सेकंड फसल उगाने के लिए, जब सेकंड फसल उगाने के लिए लोन लेती है तो ठाक होती है, बट तब भी वो पहले का ही नहीं लोन चुका पाई होती है, ठीक है, तो वापस से उसको लोन लेना पड़ जाता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, आप बोलोगे नेगेटिव सिचुएशन ये हमने पढ़ी थी, तो उस केस में वो फंसती ही जाती है बेटा उसमें। ओके, हेलो मैम, जेड़ी यह पर्पल वाले ने मैम ये केड़े ने ते जेड़े मैम ब्लू वाले ने ये केड़े ने? हेलो मैम, मेरी आवाज थोड़े तक आ रही है? हमने पढ़ा है कि एक तो जो बेटा हेलो जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही होती है, ठीक है, उनको तो फायदा हो जाता है बैंक की लोन एक्टिविटीज का। जो वीक सेक्शन के लोग होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी वीक होती है, वो फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट है बैंक में जाना, या उनको कुछ टाइप के लीगली डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके जमा होंगे, तो ऐसे ही वो छोड़ देते हैं, सोचना ही छोड़ देते हैं कि वो बैंक से लोन ले, ठीक है, तो बैंक की सुविधा का वो फायदा नहीं उठा पाते इसकी वजह से। ओके बेटा, तो ऐसे किसी से लोन लेंगे तो उनको वो महंगा पड़ जाता है, उसी लोन में वो डूबते जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेटा उन्होंने कुछ भी कंडीशंस उनको मेंशन नहीं की होती, जिससे भी वो लोन लेते हैं, तो बदले में उनको ज्यादा चुकाना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा तंग भी किया जाता है, उनकी चीजों को जब्त किया जाता है, चीजें उठा के ले जा सकते हैं, जहाँ उनपे बहुत ज्यादा जुल्म आप बोल सकते हो किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस पहले भी बेटा बहुत ज्यादा ऐसे होता था, ठीक है। अब तो अब तो क्या है कि बेटा इस टाइम पे क्या है कि अब तो सभी लोन लेते हैं, ठीक है, सबको समझ आ गई है, तो बैंक में से ही मोस्टली लोन को लिया जा सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है बच्चे, ये लोन एक्टिविटीज की टू सिचुएशंस पढ़ ली। अब जो फायदा नहीं उठा पाते, जो लोन में डूबते जाते हैं, ठीक है, जिनको नुकसान होता है बहुत ज्यादा, ऐसे पीपल्स के लिए क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प, ठीक है, इसके लिए कुछ बेटा अपने खुद के लिए कि जैसे हम बोलते हैं कि छोटी छोटी संस्था बनाई जाती है, ठीक है, जिनमें उनको काम दिलवाया जाता है, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का, है ना, जहाँ आप कोई भी काम बोल सकते हो, ठीक है, हाथ से कुछ चीजें बनाने का काम आप बोल सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही उनकी हेल्प हो जाती है, उसके बदले में उनको थोड़े थोड़े से पैसे डेली के लिए बच जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती है, उनका जो समूह होता है संस्थाओं का,
उनके पास क्या हो जाता है, डेली का पैसा जो होता है उनकी पे, वो उनके पास ही जमा होती जाती है। थोड़े से जितने उनको लोड होती है वो ले जाते हैं। इसके अलावा जो ऐसी संस्थाएं लोगों की भलाई के लिए स्टार्ट की जाती हैं, तो उनके पास पैसा उनका जमा होता जाता है, जिसकी वजह से उनका पैसा जुड़ भी जाता है थोड़ा बहुत, तो वो इजिली लोन चुकाने के काबिल हो जाते हैं। एंड बैंक से लोन लेने के लिए भी थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उनकी कंडीशन ऐसी बन जाती है ऐसी संस्था के साथ जुड़ के कि वो बैंक से लोन लेने के लिए काबिल बन जाते हैं। ओके बेटा, समझ आ गया बच्चे? देखो यहाँ पे इस पिक में दिखाया भी गया बेटा, ठीक है। ठीक, तो ऐसी कुछ संस्थाएं होती है जिनको काम दिया जाता है बेटा, ठीक है, तो लोगों को काम देती है लोगों की भलाई के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों की हेल्प भी हो जाती है, डेली का उनका थोड़ा बहुत पैसा भी जुड़ जा सकता है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बैंक से लोन लेने के काबिल हो सकते हैं, जहाँ की उनकी हेल्प ऐसे भी की जाती है। सपोज वो बैंक से लोन निकलना चाहते हैं तो वो उस संस्था की हेल्प भी ले सकती है, उस संस्था के नाम पे ही वो लोन निकाला जाता है बैंक से। ओके बेटा, बच्चे समझ आ गया ये? देखो यहाँ पे हाँ कुछ जी। पिक्स भी दिखाई गई है बेटा, ठीक है। ऐसे लेडीज को काम दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी हेल्प हो जाए बेटा, ठीक। तो छोटे छोटे काम चला के उनको नीड का सामान है जो दिलवाया जाता है, जहाँ इससे वो कुछ, जैसे किसी ने, हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, सबकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसने तो किसी से लोन लिया था, बट ऐसी संस्था के साथ पहले जुड़ के वो उसको लोन किसी से नहीं लेना पड़ता। जहाँ वो किसी से लोन लेने के लिए सोचे भी तो वो टाइम पे चुका दे, ठीक है, चाहे उसकी फसल का नुकसान हो चाहे ना हो, ठीक है। तो वो टाइम पे चुका देगी, क्यों? क्योंकि वो इसके काबिल हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनका पैसा जमा होता जाता है उस संस्था के पास। ओके बेटा, इसकी वजह से जैसे अपनी वो क्या हो जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है। सेल्फ डिपेंडेंट होने से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी कम होती है, हेल्थ इश्यूज भी उनके सामने नहीं आते। ओके बेटा, तो इनको अवेलेबल भी किया जाता है, ठीक है, ऐसी संस्थाओं से, तो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है बेटा, उनके पास पैसा भी जमा होने लग जाता है। नेक्स्ट है लास्ट में हमने बच्चे इसमें समिंग अप बेटा जो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है, उसी को बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि मनी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले कीमती चीजों से ही लेन देन किया जाता था, ठीक है, मनी नहीं होती थी बेटा। तो सोना चांदी के सिक्के चलने लगे, उसके बाद सिक्के चलने लगे तो उसके काम चलने लगे, लोग उसके लेके सोना चांदी के सिक्के देके उनकी चीज लेके आते थे। उसके बाद क्या चलने लग गया, अब तो नोट चलते हैं, नोट चलते हैं, कॉइन्स चलते हैं। नोट या कॉइन्स देके, मनी देके वो पैसा वापस लेके आते हैं, ठीक है। वो नोट कॉइन देके किसी को पैसे देके वो चीज को लेके आते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी कुछ लोन एक्टिविटीज पढ़ी थी। लोन एक्टिविटीज में हमने दो टाइप के लोग पढ़े थे कि कैसे होते हैं। एक तो पैसे जिनके जमा होते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं जो, एक ऐसे होते हैं जो अकाउंट ना खुलवा के लोन लेके आते हैं बैंक से, ठीक है। तो ये सब बेटा क्या है कि लोन एक्टिविटीज में आता है। लोन एक्टिविटीज के लिए हमने इसके पहले हमने लोन एक्टिविटीज से पहले चेक पेमेंट पढ़ी, इसको किसी को पैसे देने को तो कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा हमने लोन एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस पढ़ ली थी इसकी। अब आज हमने इसके 2 फेजेस पढ़े हैं, कौन कौन से? एक तो लोन एक्टिविटी लोन किससे लिया जाता है, बैंकों से लोन लिया जाता है, एक जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे लोन लिया जाता है। ये 2 सिचुएशंस पढ़ी है, ठीक है, काम चलाने के लिए ही लोन लिया जाता है। इसके अलावा कि बैंक से हम कंप्लीट बेटा, एक ये भी पॉइंट है एक यहाँ पे कि जो बैंक से हम लोन लेते हैं या बैंक से कोई भी पैसा निकलवाते हैं तो हम कंप्लीटली नहीं निकलवा सकते, ठीक है। बैंक के पास थोड़ा सा पैसा बचता है, कहाँ से आता है वो पैसा? बैंक को बचाना ही पड़ता है बेटा। हम तो अपने अकाउंट में से कंप्लीट पैसा नहीं निकलवा सकते। बोलते हैं ना कि इतना पैसा जो है आपका वो बैंक में डिपॉजिट, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि
कंप्लीट ही निकलवा लोगे, कुछ भी पैसा अपने अकाउंट में ना बचाओगे आप, तो क्या हो जाता है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा बेटा। समझ आ गया? तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बैंक को कुछ नकदी बचानी पड़ती है बच्चे, ठीक है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा बेटा बैंक से जो पैसे लिए हैं वो किन किन सिचुएशंस में लिए जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ा है। उसके अलावा हमने आज 2 फेसेस पढ़े हैं कि लोन कैसे लिया जाता है। एक तो बैंक से लोन लिया जाता है, एक कहाँ से लोन लिया जाता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे लोन लिया जाता है। बैंक से लोन लेना हमें सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि बैंक से जब लोन लिया जाता है तो उसपे क्या होता है कि वो वैलिड माना जाता है। उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं, ब्याज की सीमा तय की जाती है, जो बेटा म्याद है वो निश्चित की जाती है कि कितने टाइम पे आपने ये पैसा उनको वापस देना है, कैसे देना है, सब कुछ उनको बताया जाता है। साइन होते हैं बेटा वहाँ पे, ठीक है, लिखा पढ़त होती है। बट इसके अलावा जब किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ही धनवान है उससे पैसा लेंगे तो उल्टा हमें ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बाद में क्या होता है कि उनसे पैसा ले तो लेते हैं, बट जो लोन लेते हैं उनको बहुत ज्यादा तंग किया जाता है पैसों के लिए, ठीक है, या उनसे ज्यादा पैसा भी निकलवा जाता है, ठीक है। जितना पैसा वो लेते हैं वो तो देते हैं, वो तो ले ही लेते हैं वो, इसके अलावा ब्याज के पैसे भी लेते हैं, ब्याज डबल लगा के पैसा उनसे वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो जितना भी काम के लिए उसने पैसा लिया होता है, काम से जितनी भी आमदनी होती है उसको, किसान को या किसी भी लोन लेने वाले व्यक्ति को, उससे ज्यादा तो बल्कि उसे चुकाना पड़ जाता है। तो ये वाला लोन क्या है, महंगा पड़ता है। ओके बच्चे, समझ आ गया बेटा? अब इसमें कोई भी डाउट? No, ma'am. हेलो मैम। मैम हेलो मैम, मेरी बात सुनना। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम मेरी बात। हेलो हाँ जी बेटा मैम। बोलो। मैम मैं ऐसे कह रही थी, जो कल हमें मैम काम भेजा था मैम, वही चैप्टर हमें हाँ जी पहले भी भेजा बोलो था बच्चे। मैम। कौन सा बच्चे? मैम डेवलपमेंट एंड डिवेसिट मैम, इस तरह ਦਾ मैम कोई चैप्टर कल भेजा ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ जी सिविक्स ਦਾ ਦੀ मैम, उस चैप्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ ਕਰ जी ਚੁੱਕੇ बेटा। ਹਾਂ मैम। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ मैम? बेटा वो मैं आपको ना बाद में बताती हूँ बच्चे, ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको मैसेज। हाँ जी, तो आज के लिए बताओ बच्चे, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें क्या पढ़ा है हमने? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है जो आज पढ़ा है हमने? बोलो। मैं तो आप बता सकते हो। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? आज हमने बेटा क्या पढ़ा है? अभी क्लास कंप्लीट होने में बेटा टाइम पड़ा है, तो हमने आज क्या पढ़ा है बता सकते हो आप? हाँ जी शान, बताओगे बेटा क्या पढ़ा है आज? यस मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम वो लोन लेने के 2 टाइप्स के बारे में बताया है कि कैसे कैसे लोन ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, कैसे ले सकते हैं बेटा लोन? और एक तो मैम वो जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनसे, और एक बैंक से ले सकते हैं। हाँ जी, तो कौन सा लोन सस्ता पड़ता है हमें? बैंक वाला। बैंक वाला। बैंक वाला लोन क्यों सस्ता पड़ता है?
चीप लोन क्यों है? क्योंकि वो पहले बता देते थे कि कब तक लोग हमें वो पैसे वापस देने और कैसे कैसे देने। कितने पैसे देने हैं, कैसे देने हैं उन्होंने, ठीक है। तो एक वैलिड लोन माना जाता है इसको, क्यों? क्योंकि लोन लेने वाले व्यक्ति से उन कंडीशंस को पढ़ा के साइन भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे ही किसी से ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई साइन नहीं होते, कुछ नहीं होता बेटा, वहां पे कोई कंडीशंस उनको मेंशन नहीं की जाती। तो वो जब वापस लेते हैं लोन तो उनको लूटने लग जाते हैं, उनसे ज्यादा पैसा लेने लग जाते हैं वापस। ओके, हाँ जी बेटा, इसके अलावा क्या पढ़ा है हमने? कौन फायदा उठा सकता है इसका? बैंक के लोन का किसको फायदा हो सकता है? ज्यादा फायदा बेटा जो जिनके पास पैसे होते हैं वही उठाते हैं। फायदा है वो कौन उठा सकते हैं? जो जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही होती है वो फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है। जो वीक सेक्शन के लोग होते हैं, ठीक है, वो फायदा नहीं उठा पाते। जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है, क्यों नहीं फायदा उठा पाते? क्यों बैंक से लोन नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज होगी, कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। जैसे हमने मेगा के केस में पढ़ा था, मेगा लिया था, तो उसके जो हाउस के डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको बैंक अपने पास ले लेती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है कि जब वो लोन वापस चुकाएगी तभी उसको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। ओके, तो ये सब चीजों से वो हटना चाहते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो लोन ले ही नहीं पाते, ठीक है। ओके बेटा, इसके अलावा बेटा इसमें क्या पढ़ा है? इसके अलावा बेटा पढ़ा है हमने, तो बड़ी बड़ी सिटीज के लोग होते हैं वहां पे, तो अब तो यही चलने लग गया कि सभी बैंक से ही लोन लेते हैं मोस्टली, ठीक है। बट जो नहीं लोन ले पाते, जो बहुत ही ज्यादा जिनकी इकोनॉमिकल होती है, ठीक है, काम चलाने के लिए पैसा नहीं जुटा पाते,